जी जनाब, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं, उसका टाइटल है द साइंटिफिक सिग्निफिकेंस ऑफ महाशिवरात्रि। अच्छा, महाशिवरात्रि किस तरह का नाम है जो कि हम अपने बचपनों से सुनते चले आ रहे हैं। और अगर इसको जस्ट आप इसको इमेजिन भी करें ना, तो एकदम महाशिवरात्रि तो ये लॉर्ड शिवा के साथ हाँ। मंसूब नज़र आती है। बिकॉज़ लॉर्ड शिवा का नाम बहरहाल इसके अंदर आपको जो है वो देखने को मिलता है। और बहरहाल हम ये भी जानते हैं कि महाशिवरात्रि और महाकुंभ इनका भी आपस में एक कनेक्शन है, और इस रात को इसके मानने वाले बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हाँ। और क्योंकि ये एक, क्या कहना चाहिए कि स्पिरिचुअल असेंशन की रात है, और सदगुरु एक स्पिरिचुअल लीडर हैं इंडिया में, और बहुत से लोग इनको मानते भी हैं। कुछ लोग इनकी क्या कहना चाहिए कि फ़िलॉसफ़ी से इत्तेफ़ाक नहीं भी करते, लेकिन एनीवेज़ हमने जितनी बार सदगुरु को सुना है, हमें कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई है। सो महाशिवरात्रि सदगुरु की ज़बानी समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जो कुछ समझ आएगी उसके ऊपर आपसे करते हैं बात। बिल्कुल ऐसे ही है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल, और आप देख रहे हैं रिएक्शन रैदम। तो चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 3, 2, 1 एंड चलिए जी। Everything that happens to the solar system happens to you in some way. Mahashivratri night, there is a natural upsurge of energy. If you lie down, you could also harm yourself. So, that night we have a celebration, somewhere around 6 crore people could be watching. Sadhguru, you speak so logically and it makes sense to me. But at the same time, you're celebrating the religious festival of Mahashivratri in a grand way at the Isha Yoga Center. For a young person like me, these religious festivals seem like outdated rituals. So I want to know, what is the relevance of Mahashivratri to the youth? Thank you. What kind of festival would you like, first of all? Maybe only the Valentine's Day or something? That is also religious, it's Saint Valentine, all right? So what is Mahashivratri? You need to understand this. There are certain… in India, there are 365 festivals in a year. Yes. Today, due to economic reasons and the way we have structured our work and things, a whole lot of them have died. Still about 30 to 35 are being actively, maybe more than that, about 50 to 60 festivals are being celebrated by different people. But that number also is decreasing. Largely maybe about 5 or 6 are being celebrated in a big way. So, some of them are social, a few of them may be religious, but hardly any religious ones. Some are all connected to the calendar. Almost every Indian festival is connected to the calendar, what's happening in the solar system. We want to do something which is conducive for what's happening that day in the rest of the solar system. Why this is important is, because what you call as my body right now, what is human mechanism, has come out of this planet. Most people don't get it till you bury them. They think they came from somewhere. No, this body is… solar system is working like a potter's wheel to generate this. So everything that happens to the solar system happens to you in some way. So there is a very keen observation of what is happening in the solar system today. Accordingly, we have crafted one kind of celebration and we do those specific things. So on Mahashivratri night, to cut it short, because this is an elaborate subject what you opened up, on that day, which doesn't fall on the same calendar, the regular modern calendar date, on that day, there is a natural… because, planet is not spinning like this, it is spinning a certain way, and there's a precision to the planet. You know what's a precision? Hello? No, not precision in terms of exactness, I'm talking about what is precision in terms of the planet. The planet's axis is not simply rotating like this, it is going like this. It is a wobble, there is a wobble to the planet always. Because of that wobble, it creates a certain kind of situation on the planet.
So on that day, especially in the northern hemisphere or only in the northern hemisphere, there is a natural upsurge of energy. There's a natural upsurge, oh, all this energy I don't believe, you don't. Just go sit on the coast. If there is a full moon night, is the ocean rising? Hello? So a new moon day, full moon day, do you see that the very ocean is trying to rise? Well, over 2/3 of your body is water. What makes you think water inside the body won't rise? All the fluids in the body are also rising. So you will see these things are there everywhere. If you've ever been in a mental institution, no, you could have gone there just for… You will see on full moon days and new moon days, people take extra care because those who are psychologically disturbed become far more disturbed. People think moon causes madness, that's why lunar and loony and all this stuff. Moon does not cause madness, it just pulls everything up. If you're a little crazy, it makes you more crazy. You're a little loving, it makes you more loving. You're a little meditative, it makes you more meditative. Whatever is your quality gets enhanced because it's kind of… there's an upsurge in the system. This particular day, after the solstice happens in December, 22nd of December is the winter solstice. After that, the planetary precession is such that there is a natural upsurge on that particular night in a very big way. If on that night, if you lie down, this means when the energies are trying to move like this, you're kind of obstructing it. It is not only that you lose the benefit, you could also harm yourself in a very sensitive way. All these things matter to you only when you want to be a full-fledged human being. When I say a full-fledged human being, you want every faculty that can be opened up in the human being, you want it to be opened. Not if you are that kind, by evening you're drunk and sleeping, what is there also you want to kill it, that's up to you. But if you want to be a full-fledged human being, you want to full scale, everything happening to you, you observe all these small changes that happen in the system and take care of that. So you want to sit straight, you want your spine to be erect on that night. When energies are moving upward, you want to help it further go up, not like this. So, we created what is called as Jagaran, that means to stay alert and to stay erect. How to keep people erect? Just make them sit. You think they will? If I make you sit for another 5-6 hours, you will simply sit? No, I have to entertain you. Hello So, that night we have a celebration from evening 6 to morning 6, 12 hours non-stop, music, dance, meditation, various things being done so that everybody stays alert. Nearly 1 million people are in one place, but these numbers were exploding, so now we have large screens in over 130 cities across the country in southern India, so that people gather there and too many don't come here, but still it'll run into somewhere around 700 to 800,000 people in one place. And over 86 channels are telecasting it live. So how many millions of people are watching? We don't know. Last year they said it could be somewhere around 6 crore people could be watching. This time it's going to be much more. So it's grown that big because people find the benefit of what it is. You do one thing on that night without getting drunk or drugged, just sit alert. You don't like celebration, so you simply sit like this. It's up to you. So, you need to understand this. A human being needs celebration. If celebration has to happen in your life, you need some sense of playfulness, otherwise there's no celebration. Most people can celebrate only if you get them drunk. I will show you 1 million people in one place, not a drop of drink allowed anywhere, but you will see full night, not one person will sleep, everybody's on, okay? Okay,
बिल्कुल ठीक है, चलिए बात करते हैं इस पे। वाओ यार, अमेजिंग, बहुत अच्छी वीडियो थी। और वाकई मैं कहती हूँ कि सदगुरु का जो एक स्टाइल है ना अपनी बात को कन्वे करने का, वो बहुत अच्छा है। और उस हिसाब से आप ये देखें कि उनका ये बात करने का ही तरीका है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग उनके साथ किस तरह से कनेक्ट होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आप ये चीज़ देखो कि मुझे ईशा फाउंडेशन, जो कि इनकी सदगुरु की फाउंडेशन है, इसके बारे में कहीं से मैंने सुना था कि तकरीबन कोई 90 लाख के करीब, 9 मिलियन के करीब सिर्फ वो क्या कहना चाहिए, डिवोटीज़ हैं या वो रज़ाकार हैं जो कि इनके साथ शामिल हैं इस मतलब स्पेसिफिकली मिशन के अंदर। और बहुत से इसके अलावा लाखों करोड़ों लोग अक्रॉस द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स इंडिया इनके साथ जुड़े हुए हैं। हाँ। और बेसिकली सदगुरु के बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि वो एक स्पिरिचुअल लीडर हैं। और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जहाँ पर बहुत से लोग उनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं, वहाँ पे बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो कि उनकी बात को या समझ नहीं पाते या उनके ऊपर से गुजर जाती हैं वो चीज़ें। लेकिन बाय ऑल मीन्स अब आप ये देखिए कि इस वीडियो में भी उनसे एक सवाल किया गया और स्पेसिफिकली महाशिवरात्रि के बारे में सवाल किया गया। और ये सवाल किया गया कि भाई आजकल की जो यूथ है, आजकल की जो जनरेशन है, वो उसके लिए इस तरह के त्यौहार या इस तरह की रातें कहाँ तक रेलेवेंट हैं। और सदगुरु का जो स्टार्ट था वो बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि भाई किस तरह के तुम्हें त्यौहार चाहिए, क्या वैलेंटाइन वगैरह ये तुम्हारे त्यौहार हैं? सो व्हाई नॉट इस तरह की चीज़ जो कि एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर तुम्हारी करेक्शन करती है या हाँ। तुम्हारी स्पिरिट को प्योर करती है। और हमें उनकी इन बातों से बेसिकली मैं ये कहूँगा कि महाशिवरात्रि को समझने में मदद मिली है। और हम ये चीज़ जान पाए कि भई कुछ ऐसी रातें हैं साल के अंदर कि जिनमें नेचुरली, और उसका साइंटिफिक एस्पेक्ट भी उन्होंने समझाया कि भई जो चाँद है वो ज़मीन के वॉबल के हिसाब से एक ऐसी जगह पर होता है और ज़मीन का वॉबल एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ के बहरहाल आपकी वो एनर्जीज़ जो हैं वो बिल्कुल अपने पीक पे होती हैं। और ऐसे में अगर आप इवन लेट भी जाते हैं तो आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, चाहे एक बड़े माइन्यूट लेवल के ऊपर, लेकिन बहरहाल आपकी बॉडी को वो नुकसान पहुंचता है। वो आप So, पॉजिटिव एनर्जीज ले नहीं पा रहे आप वो होते हैं ना। एनर्जीज हाँ। ले नहीं पा रहे होते अपने अंदर या उनको चैनल नहीं कर पा रहे होते। और उसके लिए बेसिकली उन्होंने जिस चीज़ पर जोर दिया वो ये कि भाई जागो और अपने आप को स्ट्रेट और अपराइट रखो। हाँ अब उस जी। चीज़ को उन्होंने इस तरह से भी एक्सप्लेन किया कि भाई क्योंकि तुम लोगों को मैं 12 घंटे जो है वो इस तरह बिल्कुल अपराइट बिठा नहीं सकता हूँ, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं तुम्हें एंटरटेन भी करूँ। लोग हँसते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ये सारा कुछ उस चीज़ का हिस्सा है। लेकिन महाशिवरात्रि के बारे में हमने कुछ थोड़ी-सी अपनी भी रिसर्च की और हमने ये चीज़ जानी कि मार्च और फ़रवरी का जो मिड होता है, फ़रवरी और मार्च का मिड, उसके अंदर जो 14th के बाद जो एक ऐसा डार्केस्ट नाइट जो आती है, उस दिन मतलब उस रात को महाशिवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। और फिर हमने ये भी चीज़ जानी कि महाशिवरात्रि में बहुत सी ऐसी रिचुअल्स हैं जो कि की जाती हैं, जैसे कि फास्टिंग है, योगा है, मेडिटेशन है और इवन डांस इज़ ऑल्सो अ वे कि आप उसके अंदर आप अपनी उन एनर्जीज़ को आइदर चैनल करते हैं या उसको चैनल आउट होने देते हैं। सो एक तो ये है। दूसरा ये है कि लोग जो हैं वो रात भर इसमें जो है वो जागते हैं। और फिर ये भी है कि बहुत से लोग अक्रॉस इंडिया जो है वो ख़ास तौर पे शिवा टेम्पल्स जो हैं वहाँ का वो रुख करते हैं और वहाँ पे लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी जगहें जहाँ पे ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि वो वहाँ का सफ़र करते हैं और वहाँ तक पहुँचते हैं और वहाँ पे रात भर पूजा होती है। सो कुछ ना कुछ तो ऐसा इस रात के बारे में क्या कहना चाहिए कि है जो कि बहरहाल मतलब उसको साइंस एक्सप्लेन नहीं करती बट इट इज़ देयर। और जो एंशिएंट जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं, होली बुक्स हैं, इसके अलावा पुरानास जिनको कहा जाता है, उनके अंदर भी इस रात का ज़िक्र है और इस रात की सिग्निफिकेंस को बयान किया गया है। और बेसिकली जो चीज़ हमें समझ आई कि इट्स ऑल अबाउट दोज़ एनर्जीज़ जो कि आपके जिस्म से चैनल आउट भी होती हैं, चैनल इन भी होती हैं। और जब आप उस चीज़ को चैनल होने देते हैं और आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को चैनल आउट करते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी बॉडी के ऊपर कुछ इस तरह के असरात मुरतब होते हैं जो कि पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं ना, चाहे किसी माइन्यूट लेवल के ऊपर भी हों, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो आपका भला कर रहे होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा थोड़ी सी रिसर्च हमारी जो है महाशिवरात्रि के ऊपर वो ये भी है कि 5th सेंचुरी BCE में सबसे पहले इसको सेलिब्रेट किया गया था। और इसके अलावा ये कि इस रात के साथ बहुत से लेजेंड्स ऐसे हैं जो कि वाबस्ता हैं, जैसे कि ये चीज़ कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा और माता पार्वती जो हैं उनकी शादी हुई थी इस रात को। उसके अलावा ये कि ये भी कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा ने जो अपना एक कॉस्मिक डांस था वो इस रात को किया था। तांडव, बिल्कुल एग्जैक्टली। और तीसरे नंबर पे ये, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि लॉर्ड शिवा ने जो है वो बेसिकली जब वो समुद्र मंथन हुआ था और ये वो जो अमृत वहां से निकला था, महाकुंभ का जो हिस्ट्री है बिल्कुल महाकुंभ की जो हिस्ट्री है, तो उस वक्त जो जहर निकला था और वो उन्होंने ना सिर्फ पी लिया था बल्कि उसको उन्होंने अपने गले के अंदर, अपने हलक के अंदर उसको महफूज रखा, जिसकी वजह से वो जगह सारी उनकी नीली हो गई, जिसकी वजह से उनको नीलकंठ कहा जाता है। ये भी वाबस्ता है कि शायद ये वजह है। सो ये रात अपनी बहरहाल लॉर्ड शिवा की वजह से और उनसे मुंसलिक जो स्टोरीज हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखती है। और मॉडर्न डे टाइम्स के अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि ये ईशा फाउंडेशन, जिसके मेरा ख्याल है कि फाउंडर शायद सदगुरु हैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ या सही हूँ, कि उन्होंने बेसिकली इसका जो है वो आगाज़ किया था और लाखों लोग महाशिवरात्रि पे वहाँ पर आते हैं। और एज सच किसी रिलीजन की कोई कैद नहीं है, कोई भी आना चाहे वो आ सकता है वहाँ पे। नहीं, आप ये देखें कि जो फुटेजेस उन्होंने दिखाई यहाँ पे, बहुत बड़े पैमाने पे इतनी दुनिया, इतना क्राउड है वहाँ बिल्कुल पे। ऐसा ही है। और वो वही बात सही कह रहे थे कि भाई रिलीजन की कोई कैद नहीं है, कोई किसी भी धर्म का है वो वहाँ पे आता है। बेसिकली तो मेडिटेशन कर रहे हैं, बेसिकली मेडिटेशन है। आपने अपने इनर सेल्फ को आपने खोजना है और हाँ। आपने वो नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर से निकालनी और पॉजिटिव एनर्जीज अपने अंदर आपने शामिल करनी है। सो बेसिकली इस रात की सिग्निफिकेंस जो है वो इस वजह से है। और फिर एक चीज़ और जो हमें आज मालूम हुई वो ये कि महाशिवरात्रि के फ़ौरन बाद ही इस बार का जो महाकुंभ है वो भी ख़त्म हो जाएगा, इख्तिताम पजीर हो जाएगा। सो हमें सदगुरु की इस वीडियो से महाशिवरात्रि को समझने में मदद मिली और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम नहीं जानते थे उसको हमें थोड़ा सा पढ़ने का मौका मिला। हमने उन चीज़ों के बारे में कुछ अपनी रिसर्च हमने ऐड भी की इस वीडियो के अंदर। सो आप बताइएगा कि हमारा ये एनालिसिस या हमारी जो ये समझ है अबाउट महाशिवरात्रि वो किस हद तक दुरुस्त है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप जानते हैं वो हम नहीं जानते। उसके लिए कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, हमें बताइएगा जहाँ पे हमारी गलती है वहाँ पे हमें करेक्ट कीजिएगा। और अगर कुछ आप नया ऐड करना चाहते हैं तो बाय ऑल मीन्स यू आर मोस्ट वेलकम, हमें एजुकेट कीजिएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।